Hello students. So today we are going to start the new chapter and chapter name is issue of debentures. Okay. So already we have learned about the accounting for share capital. Accounting for share capital, that means we have learned the process for the issue of share capital. Now the question comes, what do you mean by the term debentures? As you can see, the debentures can be considered as the acknowledgement of the debt of the company. That means company, what they do, company issues the certificate, okay, and from by issuing the certificate of the company what they do, company raise the amount, okay. So the amount which has been raised by the issue of certificate, which could be considered as the acknowledgement of the debt of the company, such amount would be considered as your debentures. So now the person holding the debentures are the creditors of the company and they are known as debenture holders. कहने का मतलब है कि debenture holders, they are the creditors of the company. It is just like the process, जैसे कि company, if they what they do, if they want to take loan from the bank, company what they do, company have to pay interest to whom? To the bank. Similarly, debenture holders are liable to get interest from the company irrespective of any profit or losses of the company. कहने का मतलब है, if the company is running in losses, then also it is mandatory or compulsory to pay the interest to whom? To the debenture holders. ठीक है. So debenture holders जो पैसा लगाएगा किसमें? कंपनी में. Okay. So what they will get? उनको क्या प्रॉफिट होगा? They will get the interest from the company. Why? Because debenture holders would be considered as the creditor of the company. ठीक है. Next is your, now we will go through the journal entries. As we have done issue of share capital, same entry we have to pass. सबसे पहले क्या होगा? Application money, again there would be allotment money, then there would be first call or final call. Okay, so procedure has been considered as same. So first of all we will see on receipt of application amount. सबसे पहले क्या होता है? कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को एप्लीकेशन अमाउंट मिलेगा. ठीक है. एंट्री वुड बी, व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. जो भी पैसा मिलता है कंपनी को, कंपनी कहाँ ट्रांसफर करता है? कंपनी, दैट वुड बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके. एंड रिमेंबर, percentage would be given either 5% or 10%. So that percentage carries the interest on the face value of the debentures. ठीक है. Narration being application amount received. Next क्या है? On receipt of application and allotment amount in lump sum. कभी कभी क्या होता है? कंपनी what they do? कंपनी receive the application amount and allotment amount in lump sum. lump sum मतलब एक साथ में मिल जाएगा. तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. नरेशन बीइंग अमाउंट ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड. एक साथ में. दैट मीन्स कंपनी का इस केस में क्या होगा? कंपनी का अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा एक साथ में मिल गया, मतलब कंपनी विल नॉट मेक द कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. ठीक है. नेक्स्ट इज योर ऑन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट. ठीक है. तो जब company what they do, whatever the amount which has been received in the form of debenture application, that amount is to be transferred to the percentage debenture account. तो एंट्री क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा percentage debenture application account क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा है. यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. percentage debenture application account debited to percentage debentures account. That means your amount has been transferred to debentures. Narration being debentures amount transferred. ठीक है. Now again allotment. So allotment can be done either at par or at premium or at discount. ठीक है. तो सेम par में होगा तो एंट्री क्या बनेगा हम लोग का? डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट. ओके. कंपनी अगर 100 रुपए का डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रहा है 100 रुपीज में. ओके. So that means if the company issues 100 rupees debenture at rupees what? At rupees 100 each. That means you can say that debentures has been allotted at par. Okay.
Now if the debenture has been allotted at premium, suppose company has allotted 100 rupees share at rupees 110 rupees per debenture, ठीक है, that means कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी is getting the profit of 10 rupees, that would be considered as what, premium for the company. एंट्री क्या बनेगा, परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, नॉमिनल अकाउंट, बीइंग नॉमिनल अकाउंट इट वुड बी क्रेडिटेड. Now on receipt of, this is the due entry either at par or at premium. Now on receipt of allotment amount, entry would be bank account debited to percentage debenture allotment account. इसके अलावा क्या होता है कंपनी का सेम प्रोसेस, कॉल मनी, आइदर देयर वुड बी फर्स्ट कॉल और आइदर देयर वुड बी फाइनल कॉल. अगर फर्स्ट कॉल का ड्यू है, सेम एंट्री होगा एज वी हैव डन इन शेयर कैपिटल, परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है. और जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है. सो दिस इज वे वी आर लायबल टू पास द जर्नल एंट्री. इसके अलावा डिवेंचर्स को कहां शो करेंगे, इन द बैलेंस शीट. डिवेंचर्स वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में कौन सा हेडिंग के अंदर आएगा, अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके, so in this way we are required to pass the journal entry. So let us solve some questions to understand it. So as we can see the question from the board, your X Limited issued 2009% debenture of ₹100 each, ठीक है. एक डिवेंचर का दाम कितना है, एक डिवेंचर का दाम है 100 rupees, each payable as follows. How many number of debentures has been issued, 2000, ठीक है. ₹25 on application, ₹25 on allotment and ₹50 on first and final call. Now applications were received for all the debentures along with the application amount. Later on allotment amount with call money was received on the due date. So you are required to pass the necessary journal entry, ठीक है. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का एंट्री करना है. कंपनी कितना इशू किया, 2000 डिवेंचर्स, और अमाउंट कितना है एप्लीकेशन का, 25 रुपीज. तो एंट्री क्या बनेगा, पहला वाला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 9% डिवेंचर. सो टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है. अमाउंट कितना आएगा, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है 2000 और कितना रुपीज है हमारा एप्लीकेशन का, 25 रुपीज. सो 2000 into 25, so that will be how much, that will be rupees 50,000, ठीक है. नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, हमको एप्लीकेशन का पैसा हमको मिल गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द अमाउंट. हमको क्या करना है, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, परसेंटेज डिवेंचर्स में. तो यहाँ पे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन क्या है, क्रेडिट है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करना पड़ेगा. एंट्री क्या बनेगा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर कितना होगा, 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है. व्हाट विल बी द अमाउंट वुड बी सेम 50,000. सो 50,000, ठीक है. नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, हम क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज योर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट में कितना रुपया, 25 रुपीज. तो पहले क्या करेंगे, हमको ड्यू करना पड़ेगा. एंट्री क्या बनेगा, परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है. तो यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 9%. सो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू percentage debenture, that means 9% debentures account. This is the due entry. Same amount 2000 into 25. How much it would be? It would be of 50,000.
50,000। ये किसका हो गया? ड्यू का एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिसिप्ट एंट्री। व्हाट विल बी द रिसिप्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगा हमारा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? सेम 50,000। नरेशन हम दे सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज योर ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी 50 रुपया कंपनी ड्यू कर रहा है, कितना था? 2000। सो 2000 इंटू 50 दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी योर ₹1 लाख। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, 2% डिवेंचर अकाउंट। सो 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना होगा अमाउंट? 2000 इंटू 50। सो हाउ मच वुड बी द अमाउंट? अमाउंट वुड बी ₹1 लाख। ठीक है, सो ₹1 लाख। नरेशन क्या देंगे हम? बीइंग अमाउंट ड्यू। लास्ट एंट्री ड्यू के बाद क्या होगा? रिसिप्ट एंट्री होगा। रिसिप्ट का एंट्री का क्या होगा? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिटेड। सो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड हाउ मच? ₹1 लाख, क्योंकि सारा पैसा मिल गया, ऑल द कॉल मनी वाज रिसीव्ड। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज दैट मींस योर 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, सो हाउ मच विल बी द अमाउंट? अमाउंट वुड बी ₹1 लाख। ठीक है, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। Okay, so this is how you are required to pass the journal entry. Let us solve one more question. So now let us solve the second question. As you can see the question from the board. Y Limited issued 10,000 debentures of ₹100 each at a premium of 10%. ओके, तो 100 रुपीज का डिवेंचर है, कितना रुपया प्रीमियम है? 10%। 100 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा? ₹10। दैट मीन्स 100 रुपीज डिवेंचर्स हैज बीन इशूड एट ₹110, पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। द डिवेंचर्स वेर applied for and the amount was duly received. So you are required to pass the journal entry. Also you are required to prepare the cash book. ठीक है, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज कितना दिया हुआ है? योर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, दिस इज योर 9%. Okay, so bank account debited to 9% debenture application account. ठीक है, कितना पैसा मिलेगा? 25%. So 10,000 into 25, 100 रुपए का 25% कितना होगा? 25 रुपीज. So 10,000 into 25 would be how much? 2,50,000. Okay, so this is the receipt entry for application. Now the amount would be transferred to the debentures account along with the premium. इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो एंट्री क्या बनेगा हमारा? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 2,50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना परसेंट है? 10% ऑफ ₹100. दैट मीन्स हाउ मच? 10 रुपीज, 10,000 into 10. So how much would be? It is your 1 lakh. ठीक है, and the rest amount will be transferred to the percentage debenture, that is your to 9% debentures account. How much will the amount? Amount would be 1,50,000. ठीक है, अलॉटमेंट का एंट्री, एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। नेक्स्ट बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस कितना बचेगा?
₹100 का शेयर था, ₹10 प्रीमियम, कितना हो गया 110। सो 110 रुपीज में से 25 रुपया मिल गया एप्लीकेशन का। ओके, सो व्हाट विल बी द बैलेंस अमाउंट? बैलेंस अमाउंट वुड बी 110 माइनस हाउ मच 25। सो बैलेंस अमाउंट वुड बी ₹85। सो 85 रुपीज का क्या मिल गया हमको? अलॉटमेंट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। ठीक है, एंट्री क्या बनेगा? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, मतलब टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना था? 10,000 डिवेंचर्स था, कितना रुपीस के हिसाब से? 85 रुपीज। सो व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट वुड बी 8,50,000। okay, so this is the due amount and next is the receipt amount was duly received, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। so what will be the entry? Entry would be bank account debited to 9% debenture allotment account, to 9% debenture allotment account। कितना होगा? 8,50,000। okay, narration being allotment amount received। ठीक है, so this is how you are required to pass the journal entry and also you are required to prepare cash book। ठीक है, so cash book is to be prepared with bank column, date particular, LF, debit amount with bank column, date particular, LF, credit amount of bank column। तो जहां जहां बैंक का ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सो टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सो हाउ मच विल बी द अमाउंट? अमाउंट इज हाउ मच? 2,50,000। अमाउंट कितना होगा? 2,50,000। ओके, फिर सेकंड में बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, लास्ट में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सो दैट विल बी आल्सो ट्रांसफर्ड टू 9%, क्या लिखेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया? अमाउंट 8,50,000। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू गेट द टोटल। टोटल कितना आएगा? 2,50,000 प्लस 8,50,000। हाउ मच विल बी द टोटल? टोटल वुड बी 11 lakhs। सो टोटल आ गया आपका 11 lakhs। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर? बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस carry down. How much it would be? It would be your 11 lakhs and our account has been closed। ठीक है, so this is how we are required to prepare the cash book along with bank column। अच्छा, one thing you remember, यहाँ पे क्वेश्चन में कैश बुक बोला है बनाने के लिए, that means हमको यहाँ पे बैंक का ट्रांजेक्शन का एंट्री करने का जरूरत नहीं था। ओके, डायरेक्टली वो बैंक का ट्रांजेक्शन जो है वो डायरेक्टली हमको कहाँ लेना था? कैश बुक में। ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव डन द एंट्री फॉर द बैंक अकाउंट का एंट्री भी हम किए हैं। ठीक है, एग्जाम में ओनली यू हैव टू डू द एंट्री व्हाट एवर द बैंक ट्रांजेक्शन वुड बी देयर, डायरेक्टली यू हैव टू डू द एंट्री इन द कैश बुक एंड रेस्ट एंट्री वुड बी डन हियर। ओके, so this is how you are required to pass the journal entry in case of your debentures। So next class we will continue along with the issue of debentures for consideration other than cash। Okay, so with this I come to an end for today class। Thank you।